کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے سوالات کے تحریری جواب میں وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے قانون وقف کے تحت وقف رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع سے متعلق وضاحت پیش کی۔ پارلیمانی اجلاس کے دوران کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وقف ترمیمی قانون سے متعلق کچھ سوالات کیے تھے۔ ان کے سوالات کے تحریری جواب دیتے ہوئے وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع کی قانونی حیثیت کے بارے میں وضاحت پیش کی اور کہا کہ قانون میں موجود گنجائش کے مطابق متعلقہ ریاستی اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے وقف بورڈز کو ان کی متعلقہ وقف ٹریبیونلز کی جانب سے میعاد میں توسیع دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ اس وقت امید سینٹرل پورٹل 2025 کو 17 ریاستی اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے وقف بورڈز کے لیے دوبارہ کھولا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے فروری کے آخری ہفتے میں عیسیٰ اور موسیٰ ندیوں کے سنگم پر گاندھی سروور پروجیکٹ کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ حکومت تلنگانہ کے زیر اہتمام فروری کے آخری ہفتے میں عیسیٰ اور موسیٰ ندیوں کے سنگم پر گاندھی سروور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ دہلی کا دورہ کر رہے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں گاندھی سروور پروجیکٹ کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے مرکزی وزیر کو اس علاقے کا تاریخی پس منظر بھی بتایا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ فروری سن 1948 میں عیسیٰ اور موسیٰ ندیوں کے سنگم پر مہاتما گاندھی کی باقیات مل گئی تھی۔ ریونت ریڈی نے راجناتھ سنگھ کو یہ بتایا کہ گاندھی سروور پروجیکٹ عوامی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے موسیٰ ندی کے احیاء کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اس علاقے میں باپو گھاٹ مستقبل میں ایک عالمی سطح کی تعلیمی، ثقافتی، روحانی اور ماحولیاتی علامت کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کے دوران تلنگانہ کانگریس کے کئی اراکین پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کی موجودگی میں شیر لنگم پلی حلقے کے یوتھ لیڈر وجے کمار ریڈی اپنے حامیوں کے ساتھ بی آر ایس میں شامل ہو گئے۔ شیر لنگم پلی حلقے کے یوتھ لیڈر وجے کمار ریڈی اپنے حامیوں کے ساتھ جمعرات کو بی آر ایس میں شامل ہو گئے۔ تلنگانہ بھون میں منعقد ایک تقریب میں پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر سبھی کو پارٹی میں شامل کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر نے اعتماد ظاہر کیا کہ پارٹی حیدرآباد میں آئندہ منعقد کارپوریشن انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ پارٹی میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کئی قائدین اور کارکنان نے پارٹیاں تبدیل کی ہیں، اس کے باوجود بھارت راشٹر سمیتی مستحکم ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ اگرچہ مقامی ایم ایل اے آر کے پوڑی گاندھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن بی آر ایس کے کارکنان بی آر ایس کے صدر کے سی آر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیر لنگم پلی حیدرآباد میں بی آر ایس کا سب سے مضبوط گڑھ بن گیا ہے اور 24 ڈویژنز میں بی آر ایس کی کامیابی یقینی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے آر ٹی سی کلیانہ منڈپم میں منعقد سیلف ریسپیکٹ اسمبلی کے دوران پروفیسر جے شنکر اور تلنگانہ تلی کے مجسموں پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے باغ لنگم پلی میں واقع آر ٹی سی کلیانہ منڈپم میں تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام سیلف ریسپیکٹ اسمبلی کا انعقاد کیا گیا۔ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے تلنگانہ تلی اور پروفیسر جے شنکر کے مجسموں پر گلہائے عقیدت پیش کر ان کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ اس دوران کارکنان نے تلنگانہ کے شہداء کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی بھی منائی۔ ٹی یو ڈبلیو جے کے ریاستی صدر کے وراحت علی نے ٹریڈ یونینز کی ہڑتال کی حمایت کی اور مرکزی حکومت سے 4 لیبر کوڈز کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملک میں مودی حکومت کی لاگو کی جا رہی مزدور مخالف پالیسیوں کے خلاف جمعرات کو ملک گیر سطح پر احتجاج ہوا۔ تلنگانہ میں بھی احتجاج کیا گیا۔ ٹی یو ڈبلیو جے نے حیدرآباد میں ٹریڈ یونینز کے منعقد ہونے والے احتجاج کی حمایت کی۔ یونین کے ریاستی صدر کے وراحت علی نے ٹریڈ یونینز کے ساتھ
आरटीसी कल्याणा मंडपम से इंदिरा पार्क तक निकाले गए एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि मरकजी हुकूमत कारपोरेट्स के लिए साजगार पॉलिसियां मुतारिफ करवा रही है, जबकि मेहनतकश और ज़रूरी तबकात के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए 4 लेबर कोड्स को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। TUWJ के रियासती सदर ने तशवीश का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने 29 खवानीन में से 2 वर्किंग जर्नलिस्ट खवानीन को भी मनसूख किया है, जो सहाफ़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज होने वाले अजीमुशान मुजाहरे में 20 बड़ी ट्रेड यूनियंस के हजारों कारकुनान ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी के राम मोहन नायडू से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी के राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मरकजी वजीर पर जोर दिया कि वो मामनूर हवाई अड्डे के लिए ज़रूरी कामों का आगाज करें। उन्होंने मरकजी वजीर को ये भी बताया कि अराजी का हुसूल मुकम्मिल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने वजाविसा कोत्तागुडम एयरपोर्ट के लिए भी OLS सर्वे मुनक्किद करने की दरख्वास्त की और बताया कि पलवांचा में अराजी की निशानदही कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर ने अतरागाम हवाई अड्डे के लिए शनाख्त की गई मुतबादिल अराजी के लिए भी मंजूरी तलब की। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद हवाई अड्डे के लिए रियासती हुकूमत 249.8 एकड़ अराजी मरकज के हवाले करने के लिए तैयार है। पेद्दापल्ली जिले के बाला सदर में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 32 तलबा बीमार पड़ गए। ज़राए ने बताया कि पेद्दापल्ली जिले के बाला सदर में कम से कम 32 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बच्चों ने दोपहर का खाना खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सदर के मुतज़्ज़मीन ने बच्चों को फौरन करीबी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के श्रीधर के मुताबिक तलबा को तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब वालिदैन ने वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारों पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकाम ये कहकर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ मंडल में तलबा ने गैर मियारी खाना फराहम करने पर सड़क पर प्लेटें फेंक कर एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके जुक्कल में वाक़ ST आश्रम स्कूल में तलबा को गैर मियारी खाना फराहम किया जा रहा है। तलबा ने सड़क पर प्लेटें फेंक कर एहतजाज किया। उन्होंने धरना मुनज़्ज़म करते हुए बताया कि उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा है और बगैर पके चावल खाने से उनकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। तलबा का कहना था कि उन्होंने कई मरतबा प्रिंसिपल से शिकायत की है, लेकिन प्रिंसिपल कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये कहकर नाराज़गी का इजहार किया कि बगैर पके चावलों से उनकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। तलबा के सड़क पर प्लेटें फेंक कर एहतजाज करने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। BRS लीडर P कार्तिक रेड्डी ने राजेंद्र नगर हलके को हैदराबाद कॉरपोरेशन में ज़म करने के रियासती हुकूमत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। कहा, इस फैसले से राजेंद्र नगर हलका अपना वजूद खो देगा। रियासती हुकूमत ने राजेंद्र नगर हलके को हैदराबाद कॉरपोरेशन में ज़म कर दिया है। BRS लीडर P कार्तिक रेड्डी की क़यादत में जुमेरात को हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। P कार्तिक रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र नगर हलके को हैदराबाद कॉरपोरेशन में ज़म करने के फैसले से राजेंद्र नगर हलका अपना वजूद खो देगा, उसे सियासी और तरक्की के लिहाज से नुकसान पहुंचेगा। P कार्तिक रेड्डी ने बताया कि पिछले 2 महीनों से बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए राजेंद्र नगर हलके को हैदराबाद कॉरपोरेशन में ज़म न करने का मुतालबा किया गया है। BRS के कायदीन समेत दीगर पार्टी कायदीन ने भी मुकामी MLA को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया था। P कार्तिक रेड्डी ने बताया कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और जब तक ये फैसला
वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर सरमेराज ने दबीरपुरा डिवीजन में 26 लाख रुपए की तखमीना लागत से जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। हल्का असम्बली याकुतपुरा के दबीरपुरा डिवीजन में 16 लाख रुपए की तखमीना लागत से CC रोड और 10 लाख रुपए की तखमीना लागत से सीवरेज लाइन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA जाफर सरमेराज ने दबीरपुरा डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और मुताल्लिका अहदेदारों से कामों की तकमीली से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कारकुनान और मुकामी लोग भी मौजूद थे। INTUC के जनरल सेक्रेटरी आदिल शरीफ ने मरकजी हुकूमत के 4 लेबर कोड्स को मजदूर मुखालिफ, किसान मुखालिफ और अवाम दुश्मन करार देते हुए उन्हें मनसूख करने का मुतालबा किया है। बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ डॉक्टर G संजीवा रेड्डी, साबिक़ रुकन राज्यसभा व सदर ऑल इंडिया INTUC की सदारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की जानिब से हैदराबाद में हड़ताल की गई, जो कि कामयाब रही। आदिल शरीफ जनरल सेक्रेटरी INTUC की क़यादत में बल्दी मुलाजमीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के मुलाजमीन और कारकुनान ने हड़ताल में हिस्सा लिया। GHMC के तकरीबन 1200 मुलाजमीन और कारकुनान ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़ टैंकबंड से धरना चौक इंदिरा पार्क तक एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज में TPCC के सदर महेश कुमार गौड़, जुबली हिल्स के MLA नवीन यादव, दीपक जॉन, प्रेसिडेंट सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अलावा RD चंद्रशेखर, जनरल सेक्रेटरी स्टेट INTUC वोतीकर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए आदिल शरीफ ने मजदूर मुखालिफ, किसान मुखालिफ और अवाम दुश्मन 4 लेबर कोड्स को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम को कौमी तराने के तौर पर तमाम सरकारी प्रोग्रामों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तकरीबात में लाजमी करार देने के फैसले पर शदीद तनकीद की। मरकजी हुकूमत ने वंदे मातरम को कौमी तराने के तौर पर तमाम सरकारी प्रोग्रामों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तकरीबात में लाजमी करार देने की हिदायत जारी की है। हुकूमत के इस फैसले पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वंदे मातरम को कौमी तराने के तौर पर सभी सरकारी प्रोग्रामों, स्कूलों, कॉलेजों और तकरीबात में उसकी तमाम सतरें लाजमी करना न सिर्फ एक जानिबदार बल्कि ज़बरदस्ती थोपा गया फैसला है। उन्होंने लिखा कि ये आइन में दी गई मजहबी आज़ादी पर खुला हमला और अक़लियतों के हुकूक छीनने की एक काबिल मज़म्मत कोशिश है। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने लिखा कि मुसलमान जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं को उसे पढ़ने पर मजबूर करना आइन की शर्ह 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खुली खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने तवील पोस्ट में लिखा कि याद रहे कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा वंदे मातरम को लाजमी करार देना आइन की रूह, मजहबी आज़ादी और जमहूरी इक़्तिदार पर खुला हमला है। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट म्युनिसिपैलिटी के कांग्रेस उम्मीदवार ने गुज़िश्ता रोज मुनक्किद इंतखाबात में उन्हें वोट न दिए जाने पर अवाम में तकसीम किए गए पैसे और कुकर वापस मांग लिए। ज़रा ने बताया कि भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस उम्मीदवार ने राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए रकम और कुकर तकसीम किए थे। गुज़िश्ता रोज मुनक्किद बल्दी इंतखाबात के दौरान उन्हें वोट न मिलने पर उन्होंने पैसे और कुकर वापस मांग लिए। इस तौहीन पर अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने पूछा है कि किसने उनसे रकम और कुकर मांगा था। लोगों ने एहतजाज करते हुए सवाल किया कि आखिर कांग्रेस उम्मीदवार उनकी इस तरह से तौहीन क्यों कर रहे हैं। अवाम का गुस्सा और एहतजाज अपनी जगह, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस उम्मीदवार को कैसे पता चला कि अवाम ने उन्हें
वोट नहीं दिया है, क्योंकि 11 फरवरी को यानी कल ही वोट डाले गए हैं और 13 फरवरी को यानी कल बरोज जुमा को नताइज का ऐलान किया जाएगा। और आज यानी 12 फरवरी को कांग्रेस उम्मीदवारों ने लोगों से रकम और कुकर वापस करने को कहा। उनके इस मुतालबे ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एलओपी राहुल गांधी के अहाता पार्लियामेंट में मरकजी वुज़रा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुदाखलत करने पर वुज़रा सहाफ़ियों से बात किए बगैर ही वहां से चले गए। पार्लियामेंट के अहाते में मरकजी वुज़रा अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। राहुल गांधी वुज़रा के करीब पहुंचे और उनसे कहा कि वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी को देखकर मरकजी वुज़रा ने सहाफ़ियों के साथ जारी अपनी बातचीत को अधूरा छोड़ दिया और वहां से जाने लगे। राहुल गांधी को वजीर प्रहलाद जोशी का बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश करते भी देखा गया है। बीजेपी कायदीन का राहुल गांधी के करीब आने पर सहाफ़ियों से बातचीत न करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हाइड्रा के हुकाम ने हाईटेक सिटी के करीब 11 एकड़ मकबूजा अराजी पर दोबारा दावा हासिल करते हुए 2200 करोड़ रुपये मालियती सरकारी असासों का तहफ़्फ़ुज़ किया। हाइड्रा ने माधापुर में हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर के करीब एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देकर 11 एकड़ मकबूजा अराजी पर दोबारा दावा हासिल किया। हाइड्रा के हुकाम ने इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 2200 करोड़ रुपये मालियती सरकारी असासों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। रंगारेड्डी जिले के शेरलिंगमपल्ली मंडल के खानमेड गांव में बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम दी गई। हाइड्रा के एहलकारों ने मोदीकुंडा झील और उसके आसपास गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए सैकड़ों आरजी शेड्स और 30 से ज़ायद दुकानात को हटा दिया। आपको बता दें कि हाइड्रा प्रजावानी के जरिए मुकामी बाशिंदों की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद ओहदेदारों ने तजावुज़ात की निशानदही की और फिर हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू और जीएचएमसी के हुकाम के साथ तफसीलात हासिल की और कब्ज़ाजात को बर्खास्त कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।